Hello everyone. In previous video, I taught the chapter up to here, up to here. Okay, so we have to start from here now. Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. He says that he can confine himself in a room and he may never leave it, but it is not beneficial. Okay, it is of no use. There was a man who did that, and he to prove it, he gives an example of a man. Means he tells him a story of a man who confined himself in a room. He was afraid. Means the man was afraid of many things. You see, of everything. Actually, he was afraid of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. तो उस आदमी को हर चीज़ से डर लगता था कि कहीं उसको बस मतलब कुचल ना दे, क्रश ना कर दे उसको, ठीक है। और मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स, और कोई आदमी उसके ऊपर डेडली यानी खतरनाक जानलेवा जर्म्स बैक्टीरिया ना छोड़ दे। और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई डोंकी उसको मतलब पैर से मार करके उसको मार ना दे। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और उसको ये भी डर लगता था कि बिजली उसके ऊपर गिर सकती थी। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और कोई वो किसी लड़की से प्यार कर सकता था और वो लड़की उसको प्यार में धोखा दे देती तो मतलब वो मर जाता उससे। एंड ही माइट स्लीप ऑन अ बनाना स्किन, और वो ये भी डरता था कि वो इस बात से भी डरता था कि उसका पैर बनाना के छिलके के ऊपर आ सकता था एंड वो स्लिप होकर के गिर सकता था। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और लोग उसको देख करके बुरी तरह से हंसते, ठीक है। तो ही हैड वेरियस फियर्स in his mind. So he went into this room. So he confined himself into a room and locked the door. Okay, and got into his bed and stayed there. And he stayed on the bed and मतलब उसी रूम में वो रहा, ठीक है, फॉर एवर। तो डैरी becomes curious to know about the man and he asked if he stayed in the room forever. मिस्टर लैम, वो फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के लिए रहा वो। देन व्हाट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। फिर मिस्टर लैम उसको बताता है कि मतलब इट रिजल्टेड इन हिज डेथ। एक्चुअली अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल and it fell on his head and led to his death. Derry laughs a lot. Derry begins laughing. हंसने लग जाता है। Mr. Lamb, you see, कहता तुम्हें समझ में आई ये बात। यानी Mr. Lamb includes the story of a man who alienated himself to teach him that alienation is not the solution. Alienation may lead to death. Okay, it may prove to be fatal. ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये बात समझाने के लिए उसने स्टोरी का मेंशन किया है, ठीक है। मिस्टर लैम, तुम्हें समझ में आया। डैरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। इवन नाउ डैरी सेज दैट ही सेज पिक्यूलियर थिंग्स। ये कहता है कि तुम अभी भी अजीब बातें मतलब तुम करते हो। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम। तो वो कहता है कि हाँ, कुछ के लिए पिक्यूलियर हो सकती है मेरी बातें। डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे। कहता तुम सारा दिन क्या करते हो। सिट इन द सन, रीड बुक्स। ए, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। Then Mr. Lamb tells how he spends time. He tells that he sits in the sunlight in his garden for some time. He reads books, and it means Derry thought that his house was empty, but there were many books. Actually, his house was full of books, and he he read the books. Okay, in this way, spent time. Yes, next. Derry, but there aren't any curtains at the windows. Then he says that there are no curtains at his windows. Mr. Lamb, I'm not fond of curtains. He says that he does not like the curtains at the windows. Shutting things out, shutting things in. It is very important line. A question may be asked here कि shutting things out, shutting things in, है ना। तो इस चीज़ को explain कीजिए, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। Yes, so he does not like curtains at the windows because he does not like to keep the things out and the things in by
putting the curtains. I like the light and the darkness. Means he likes everything, light, darkness, and the windows open. He likes to keep the windows open every time. To hear the wind, he also likes the wind. So these means words show the open mindedness of Mr. Lamb. कि बहुत ही ओपन माइंडेडनेस वाला आदमी है वो, तो ये चीज़ ये दिखाती है. डैडी यस आई लाइक दैट. कहता है हाँ मुझे ये अच्छा लगता है. व्हेन इट्स रेनिंग, क्या अच्छा लगता है जब बरसात हो रही होती है. तो आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ. मुझे भी बरसात को छत के ऊपर सुनना अच्छा लगता है, कि जो पीटर पैटर साउंड होती है रेन की, वो उसको सुनना अच्छा लगता है. ठीक है. Mr. Lamb, so you are not lost, are you? Then Mr. Lamb says that it means he is not lost, not altogether. Means he is not completely lost. कि वो थोड़ा सा मतलब भटका हुआ तो है जिंदगी से, मतलब वो थक चुका है, हार चुका, लेकिन पूरी तरीके से इसका मतलब नहीं हारा है. यू डू हियर थिंग्स, कि तुम भी चीज़ें सुनते हो, है ना, ध्यान से सुनते हो. यू लिसन. डैडी दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं डाउन स्टेयर्स. कहता हाँ वो सुनता है, लोगों को ध्यान से सुनता है. डाउन स्टेयर्स लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं उनके पास नहीं होता तब वो बातें करते हैं. क्या बातें करते हैं लोग उसके बारे में? कि what will he ever do, what he will do, what's going to happen to him when we have gone, जब हम चले जाएंगे. हम से मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, कि मतलब he hears his family members talking what would happen with him, what would happen to him after they have left the world. Okay, however will he get on in this world and how he will survive in this world. Get on, survive करना, इस वर्ल्ड में वो कैसे survive करेगा. Looking like that means he looks so ugly. With that on his face means his face is burnt, so he looks ugly. So how he would survive, how he would get along. That's what they say. और ये बातें वो लोग कहते हैं. Okay. Mr. Lamb, Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. Mr. Lamb tries to teach him that he has everything intact. Means all his organs, his limbs are intact. Okay, so he can lead a normal life. He can lead life like other children. There is no problem. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. And if he determines, he can lead even a better life than other मतलब चिल्ड्रन. ओके. डैडी हाउ, कैसे, तो पूछता है कैसे कैसे लीड कर सकते हो. सेम वे एज आई डू, ही टेल्स सिमिलरली एज ही डज. डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स. देन डैडी आस्क इफ ही हैज़ एनी फ्रेंड्स. हंड्रेड्स. कहते हैं हाँ मेरे हंड्रेड्स दोस्त हैं. डैडी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू. ही सेज दैट बट देर इज नो वन विद हिम. He lives alone in his house, and even his house is very big also. Mr. Lamb, friends everywhere. So he says that friends may be everywhere. It is not important, it is not necessary that they will live with him in his house. People come in, everybody knows me, people come to him, and all the people know him, means everybody knows him. The gate is always open, and his gate always remains open. They come and sit here. वो यहाँ आते हैं, उसके पास बैठते हैं. And in front of the fire in winter, and in winter also they spend a lot of time in front of the fire in his garden. Kids come for the apples and pears, and children also come to him for apples and pears. Fruits है ये, मतलब apples हैं, pears हैं. तो but for toffee, सॉरी एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी लेने के लिए भी आते हैं. आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ. एनीबडी कम्स, कोई भी आ जाता है यहाँ पर. सो हैव यू, जैसे तुम आए हो. ओके. डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. ही सेज दैट ही इज़ नॉट हिज फ्रेंड. सटनली यू आर. कहता है हाँ श्योरली वो फ्रेंड है उसका. सो फॉर एज आई एम कंसर्न, कहता है जहाँ तक मेरा संबंध है या मेरा मानना है तो तुम मेरे दोस्त हो. वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. तुमने ऐसा क्या किया है. वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक, भाई तुमने मेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है कि जिससे मैं ये सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो.
डैडी यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और तुम ना ये जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, एंड और इवन व्हाट माई नेम इज, और मेरा नाम क्या है, मीन्स ये चीज़ें तुम मेरे बारे में नहीं जानते. ही नोज नथिंग अबाउट हिम. Mr. Lamb, why should that signify? But he says that it doesn't signify, doesn't matter. कहते हैं इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? कहता है कि before befriending him, if he requires to keep a to maintain a file, having his particulars, having his all personal details. Derry, I suppose not. हाँ कहता है शायद नहीं. मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम. चलो तुम अब मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ यू चूज, अगर तुम चाहो तो. आई नोट इफ यू डिडंट, और अगर तुम ना चाहो तो मत बताओ. डेरी, ओनली इट्स डायरेक्ट. कहता कि मेरा नाम डेरी है, वैसे डायरेक्ट, बट आई हेट दैट, पर मुझे डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता. डेरी, तो डेरी. इफ आई एम योर फ्रेंड, और कहता कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो यू डोंट हैव टू बी माइन. अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, तुम्हें मेरे दोस्त होने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मैं तो नहीं मानता, आई चूज दैट. मिस्टर लैम, सर्टनली. कहता निश्चित तौर पर तुम ऐसा सोच सकते हो. डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन. कहता मैं यहाँ दोबारा नहीं आ सकता, है ना भाई, शायद मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ. यू माइट नेवर सी मी अगेन, और तुम मुझे कभी दोबारा नहीं देखोगे. देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड. तो फिर भाई मैं तो नहीं मानता कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, कैसे हो सकता हूँ आपका फ्रेंड. मिस्टर लैम, वाई नो. कहते क्यों नहीं हो सकते. हाउ कुड आई. कहते कैसे हो सकता हूँ. यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, बट यू नेवर सी देम अगेन. कहता है ऐसे तो गली में से भी बहुत लोग गुजरते हैं, और चलो भाई आप एक बार उनसे अगर बोल भी लो तो ये ज़रूरी नहीं ना कि भाई वो तुम उनको दोबारा देखोगे, वो दोबारा इस गली में से ही आएंगे. इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो तुम्हारे दोस्त हो गए. ठीक है. मिस्टर लैम, डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट. तो कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे मेरे शत्रु हो गए हैं, तो शत्रु भी नहीं है. डेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग. कहते हैं हाँ शत्रु भी नहीं है, लेकिन दे आर जस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, ना वो दोस्त है ना एनिमीज हैं. पीपल, केवल वो पीपल है, दैट्स ऑल, बस इतना ही. मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. मिस्टर लैम लेज स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट पीपल कैन नेवर बी कॉल्ड नथिंग. ओके, कि लोगों को कभी भी हम नथिंग नहीं बोल सकते हैं. Derry, there are some people I hate. He tells him that there are some people whom he hates, whom he dislikes. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. Mr. Lamb tells him that if he hates the people, then hatred will cause him more harm than acid. Because acid can burn a person from outside only, but hatred spoils his inner self. Okay, it can spoil even his हार्ट, उसके हार्ट को ही स्पॉइल कर देगा. और अगर एक आदमी के अंदर अगर हेट्रेड है, किसी के लिए जेलसी है, तो फिर वो आदमी कोई काम का नहीं रहता है. ठीक है. डेरी, तो डेरी क्या बोलता है. ओनली, केवल, वो फिर डॉट डॉट मतलब कि वो केवल इतना ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता. मिस्टर लैम, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग. जैसे कि बॉम्ब ने मेरे लेग को मतलब एक्सप्लोड कर दिया, है ना, उड़ा दिया. देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, और इससे भी बुरा हो सकता है. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, मतलब तुम अंदर से जल सकते हो. यानी कि क्या कहना क्या चाह रहा है कि जो एसिड वगैरह है वो एक पर्सन को केवल आउटसाइड तौर पर ही, बाहरी तौर पर ही उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जो ये जेलसी है या हेट्रेड है, ये आदमी की आत्मा को ही करप्ट कर देती है, या उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसके आत्मा को ही करप्ट कर देती है. बिल्कुल ठीक है. तो ये उसको एसिड से भी ज़्यादा नुकसान करेगी, तो उसको हेट्रेड जो है उसको नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी. Derry, after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there. So he is telling Mr. Lamb now that when he had come home from the hospital, a person said that it would have been better for him to stop at the hospital. कि हॉस्पिटल में अगर वो रुक जाता तो ज़्यादा अच्छा होता. In the hospital, he would be better off with others like himself. Means he would lead a better life there along with the persons of his kind. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot
बॉयज़। और उस पर्सन में वो कौन थी, वो एक वुमन थी, ठीक है। तो वो सोचती है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और इडियट मूर्ख लोगों को मूर्खों के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है मिस्टर लैम। एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों की टांगे नहीं है उन लोगों को, तो उन लोगों को भी यानी उनके साथ ही रहना चाहिए। डैडी दैट्स राइट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो बिना लेग्स के लोग हैं उनको बिना लेग्स के लोगों के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है, ये सही होगा। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, ये दुनिया कैसी दुनिया होगी, कभी सोचा है? तो ही आस्क व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट वुड बी। डैडी, एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। कहते कम से कम वहाँ तुम्हें घूरने के लिए कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे, यू वरंट लाइक देम, ठीक है, कि सब वहाँ पर एक जैसे हो जाएंगे तो कोई भी एक दूसरे को मतलब घूरेगा नहीं, आपको घूरेगा नहीं। Mr. Lam, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces? तो वो क्या सोचता है कि वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उन लोगों जैसा जिनके चेहरे जले हुए हैं, तो मतलब उनके अंदर बिल्कुल सिमिलरिटी है। जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जैसा तुम दिखते हो मतलब ऐसा दूसरे भी ऐसे ही दिखते हैं। ए एवरीथिंग इज डिफरेंट, ए हर कोई अलग है, ठीक है, एवरीथिंग इज द सेम, और हर कोई मतलब सेम है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर कोई अलग है अपने आप में। तो वो क्या समझा रहा है उसको कि एवरी वन हैज़ हिज ओन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर एक आदमी की हर एक चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू होती है और कोई किसी की जगह भी नहीं ले सकता है, ठीक है। और इस तरह की दुनिया मतलब सक्सेसफुल दुनिया नहीं होगी जिस तरह की जैसे डैरी सोच रहा है कि अंधे लोगों के साथ रहें, और इस तरह की ये भी ऐसा ही सोच रहा है कि लंगड़े लोगों के साथ ही रहें, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये सब कैसे समझते हो इतना कुछ? मेक आउट मीन समझना, अंडरस्टैंड, कि हाउ ही अंडरस्टैंड्स ऑल दैट। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ही टेल्स दैट ही वॉचेज द थिंग्स, लिसन्स एंड थिंक्स अबाउट दैम। आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन। He tells him that he likes the place like this, means he likes such a garden. I would like a house with no curtains, and he also wants a house where he will have no curtains. Mr. Lamb, the gate is always open, he welcomes him, वो कहता है कि गेट हमेशा आपके लिए खुला है, तुम आ सकते हो। Derry, but this is not mine. Then Derry says that but the house and the garden does not belong to him, कि जो गार्डन है या वो उससे बिलोंग नहीं करता है। एवरीथिंग इज योर्स, कहता है सब कुछ तुम्हारा है, इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, और जो मेरा है वो हर किसी का है। सो आई कुड कम हियर अगेन, तो इसका मतलब मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? डैडी पूछ रहा है। इवन इफ यू वर आउट, अगर आप बाहर हो, अगर आप यहाँ नहीं हो तो भी मैं आ सकता हूँ, है ना। सर्टनली, कहता हाँ श्योर, मीन्स ही कैन come to this garden or house, surely you might find others here of course, but he will find other people also. Oh, then Derry hesitates, Derry hesitate करता, oh दूसरे लोग मिलेंगे। well हाँ, that need not stop you, but कहते तुम्हें इससे रुकने की ज़रूरत नहीं है। he should not avoid the people, he does not need to stop himself, you need not mind, तुम बुरा मत मानो इस चीज़ का। Derry, इट वुड स्टॉप देम, कहता मैं बुरा नहीं मान रहा और मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा। इट वुड स्टॉप देम, ये उनको रोकेगा, ये मतलब लोग अपने आप को रोकेंगे जब वो उसको देखेंगे टेरी को, तो उनको बुरा लगेगा, उसके चेहरे के बारे में उनको बुरा लगेगा और फिर वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। दे वुड माइंड मी व्हेन दे सो मी हियर, जब मुझे वहाँ वो यहाँ देखेंगे ना गार्डन में, तो वो माइंड करेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, क्योंकि वो लोग जो हैं वो मेरे चेहरे को देखते हैं और भाग जाते हैं। ओके, दे ट्राई टू एस्केप on seeing his face. Mr. Lamb, they might, हाँ ऐसा हो सकता है, भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। they might know, पर ऐसा नहीं भी हो सकता, it is not necessary. You would have to take the risk, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। so would they, और उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा। no you would, कहता नहीं, ना मुझे रिस्क लेना पड़ेगा ना आपको, आपको लेना पड़ेगा रिस्क। तो you might have me and lose all your other friends, कहता है या तो तुम मुझे पा सकते हो और अपने सारे दोस्तों को खो दोगे, कि मैं आऊँगा तो लोग डर के भाग जाएंगे, तो सभी अपने उन दोस्तों को खो दोगे। बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि जो है कोई भी लोग जो मेरे नज़दीक नहीं रहना चाहता, ठीक है, कोई भी उसके पास नहीं रहना चाहता भाई, उनके जहाँ तक उनके बस में होता है। मिस्टर लैम,
आई हैव नॉट मूव्ड, कहता नहीं मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। डैडी नो, नहीं मानते। मिस्टर लैम व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कहता जब मैं गली में जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमी लैम, तो बच्चे मुझे लैमी लैम कह करके बुलाते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, फिर भी गार्डन में वो आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आ जाते हैं। इट्स अ गेम, ये गेम है, इट इज जस्ट लाइक अ गेम। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, और वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, क्यों डरे वो? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, इसलिए कहता है नहीं। डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपकी जो लेग है उसने, कहता है कि आपने अपनी लेग को वॉर में खो दिया? कहता है सर्टनली यस। हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, तो फिर आप कैसे एक लैडर के ऊपर चढ़ते हो? लैडर सीढ़ी, और कैसे वो क्रैब एप्पल्स को पिकअप करता है, कैसे तोड़ता है? ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू प्लेंटी ऑफ आई हैव लर्न टू डू, कहता है अरे बहुत सी चीज़ें जो मैंने करना सीख लिया है। ओके, ही हैज़ लर्न मैनी थिंग्स and plenty of time for it, and he has a lot of time to learn such things. Years I take it steady, कहते हैं मैं भी इसको नॉर्मली लेता हूँ। he takes all these things normally, he has managed. Daddy if you fell and broke your neck, अगर आप कभी गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई, you could lie on the grass, ग्रास पे गिर जाओगे, मर जाओगे तुम। if you were on your own, अकेले वैसे रहते हो है ना, तो तुम मर जाओगे ऐसे तो। मिस्टर लैम आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता है। डैडी यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। मिस्टर लैम इफ़ यू वांट टू, हाँ अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। डैडी बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, पर मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, कहते मेरा घर जो है 3 मील दूर है यहाँ से, अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों को पार करके ना। आई एम 14 एंड ही is only 14 years old, but they still want to know where I am. Still his family members are worried about him. Okay, Mr. Lamb people worry, हाँ लोग चिंता तो करते हैं। people first, चिंता तो क्या करते हैं, डैडी बोल रहा है कि लोग बकवास करते हैं, फर्स्ट करते हैं, फालतू की बातें करते हैं मतलब। मिस्टर लैम गो बैक एंड टेल देम, चलो चले जाओ फिर तुम उनको बताए आओ। इट्स 3 miles, कहता है 3 मील दूर है, इट इज़ 3 miles away from this place. It's a fine evening, कहता है अच्छी शाम है। You have got legs and he has legs also, he can run. Okay, once I got home, एक बार मैं घर चला गया, they would never let me come back, मुझे वो वापस नहीं आने देंगे। Mr. Lamb once you got home you would never let yourself come back, एक बार तुम घर चले गए ना, तुम अपने आप ही नहीं आओगे, तुम अपने आप को ही नहीं आने दोगे। ठीक है, कहते हैं अपने आप ही नहीं आओगे तुम, वैसे अपने आप को ही अलाउ नहीं करोगे यहाँ आने के लिए। डैडी यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। ही टेल्स हिम दैट ही डजंट नो व्हाट कैन ही डू इफ़ ही वांट्स। मिस्टर लैम नो ओनली यू नो दैट, हाँ मैं तो नहीं जानता, ये तो बात तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। यानी कि अगर हम कोई चीज़ ठान लें तो हम वो काम कर सकते हो, और ये चीज़ हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता हमारे बारे में, यानी हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में, हमारे स्ट्रॉन्ग विल के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। तो जो कुछ अगर हमें करना है तो वो हमें ही डिसाइड करना होता है। मिस्टर लैम हाँ डैडी इफ़ आई चूज, कहता है कि हाँ अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम इफ़ यू चूज यस, कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, हर कुछ मैं नहीं जानता बॉय। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करो, यानी कि तुम खुद ही जानते हो। Okay.